There are so many calendars. For example, there is a Julian calendar. Take down Julian calendar. There is a Gregorian calendar. Calendar means Sambat. Sambat. In Sanskrit, Samvat. Hijri calendar. Hijri. Z. H-I-Z-R-I. Hijri calendar. Then Bikram Sambat. Bikram Sambat. Then Shak Sambat. Take down different Sambat, different calendars. This one Gregorian. Gregorian was Pope, है ना? Gregorian. It was named after him. Gregorian calendar. Julian calendar. Julius Caesar. Julius Caesar was general of Roman Empire. General statesman of Roman Empire. Roman Empire, Greek civilization and Roman civilization. Na? So he was very famous. So this calendar begins with 45 or 46. 45 or 46. ठीक है, जरा चेक करिए बीसी है एडी है मोबाइल पे. 45 और 46 बीसी और एडी. बीसी और एडी. बीसी ना, बीसी. 46 और 45, समवेयर 45, समवेयर 46. ठीक है, 46 BC. Julian calendar. Now Gregorian calendar, the new calendar came in 1582 AD. It was introduced by Gregorian. He was the Pope at that point of time. He wanted to make some changes in the leap year calculation. Leap year calculation. So Gregorian calendar. Julian 46 BC. BCE. हाँ, उस पे आ रहे हैं, कैसे आ रहा है BCE. ये समझ गए, पहले इतना समझे. जूलियन कैलेंडर BCE कर लीजिए. BC क्यों, दोनों एक ही है, कैसे बताते हैं. जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर. नाउ व्हिच कैलेंडर इज इन सर्कुलेशन थ्रू आउट द ग्लोब टुडे. कौन से कैलकुलेशन, कौन से कैलेंडर को हम यूज कर रहे हैं. गवर्नमेंट कौन सा कैलेंडर यूज करती है, भारत सरकार. ग्रेगोरियन कैलेंडर अलोंग विथ सक कैलेंडर. Saka and Gregorian. So Gregorian calendar means the English calendar which is commonly used everywhere. So common era. C means common era. BC means before common era. Take down BCE. Before common era. CE common era. BCE before common era. C क्योंकि Gregorian calendar is commonly used everywhere. And these both are solar calendar. Lunar calendar and solar calendar. Solar calendar means the calculation is done on the basis of sun, earth, sun. Before you can say enlightenment period or renaissance period, earth centric approach was there. That earth is there in the center and the sun is moving. And then sun is there, earth is moving. Got the point? So this is based on, you can say, that calculation. So solar calendar, these are solar calendar. Next calendar, Hijri, Islamic calendar. Hijri calendar means Islamic calendar. And why this? Because this is the Saudi Arabia. Prophet Muhammad was born in 570 AD in Makkah. He migrated from Makkah to Medina in 622 AD. Makkah to Medina. So migration means separation. That is known as Hijri calendar. He migrated from Makkah to Medina. Now why he migrated, that would not be discussed today, because that is the part of medieval history. Getting the point? He was compelled to do that because so many people were there who would not be having, you can say,
conformity, similarity with the opinion of Prophet Muhammad. He said that idol worship should not be there. So that's why this migration, day of migration, Hijri calendar. Hijri means separate hona. ठीक है? So Islamic calendar. Getting the point? Now Islamic calendar, this is a lunar calendar, not the solar calendar. Lunar means Chandrama. So on the basis of the calculation is done on the basis of the phases of moon. You can say moon. So lunar calendar. So first one is Julian calendar. Second is Gregorian calendar. Third is Hijri calendar. Now, कौन सा? This one? Gregorian calendar. Gregorian. Hijri calendar on the same year, in the same year, 622 AD. And he died in 632 AD. His successors are known as caliphs. खलीफा कहे गए. पढ़ेंगे जब medieval history जब पढ़ेंगे तो देखेंगे. Getting the point? Now, in world history, you have to study, you can say, Russian Revolution. World history. Russian Revolution happened in 1917 in two phases. In February 1917 and in October 1917. According to Julian calendar, it is known as February Revolution and October Revolution. According to Gregorian calendar, it is known as March Revolution and November Revolution. Because there is a 14 days gap between the two calendars. Getting the point? So before, you can say, or at that point of time in Russia, Julian calendar was in circulation. तो इसलिए दो अलग अलग है. तो ग्रेगोरियन के हिसाब से मार्च और नवंबर, तो ये गैप होता है ईयर के. तो ये 3-4 आप कैलेंडर देखें. अब अगर भारत की हम बात करें तो पहला विक्रम संवत. विक्रम संवत कैलेंडर मीन्स इट बिगिंस विथ अ पार्टिकुलर डेट, है ना, और पार्टिकुलर ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द डेट, फर्स्ट डेट. So Bikram Sambat. Bikram Sambat means which year? It began which year? Bikram Sambat. अभी just like 3 or 4 months before, लाल किला रेड फोर्ट पे नाटक हुआ था. विक्रमादित्य राजा, उज्जैन किंग विक्रमादित्य. ठीक है, that was sponsored by, you can say, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. अब हिस्ट्री में देखिए क्या प्रॉब्लम है. विक्रमादित्य बहुत ही बड़े शासक थे, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है. हम जैसे ही विक्रमादित्य कहते हैं हमारे दिमाग में आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि बहुत बाद के शासक हैं गुप्ता पीरियड के. लेकिन उसके पहले उज्जैन के शासक क्या थे? विक्रमादित्य. ठीक है, वेरी फेमस. तो ये 57 बीसी में उन्होंने ही इंट्रोड्यूस द विक्रम संवत. 57 BC. It means that it is this calendar is, है ना, 57 years, है ना, 57 years before the Gregorian calendar today. 57 years before. So Bikram Sambat. And Bikram Sambat is used in India or not? Bikram Sambat is used in India in cultural and religious purpose. Getting the point? Cultural and religious. तो यहाँ पे नोट लीजिए, for cultural and religious purpose. विक्रम संवत. बहुत सारे कैलेंडर होते हैं जो विक्रम संवत को लेके चलते हैं. Getting the point? विक्रम संवत. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई परेशानी हो तो ड्रॉप करिएगा क्वेश्चन, है ना जी. नेक्स्ट, विक्रम संवत के बाद शक संवत. शक संवत. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, हु इंट्रोड्यूस शक संवत? काजल नहीं पल्ले पढ़ रहा है या पढ़ रहा है? ठीक है, चेहरे पे थोड़ा सा मुझे दिखाइए कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है तो फिर समझेंगे, ठीक है, बट समझना तो पड़ेगा ही, रो के या गा के. कल ही मैंने बता दिया, हिस्ट्री अगर नहीं समझ में आएगा तो भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हिस्ट्री कमजोर हो गया तो मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. शक संवत.
दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कनिष्क, नाम सुना है? कनिष्क, वेरी फेमस रूलर कनिष्क। अभी आएंगे टाइमलाइन पे, है बहुत लोगों को टाइमलाइन में दिक्कत है, ठीक है। सो कनिष्क वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? कनिष्क किस डायनेस्टी का शासक है? सुना है कभी? कुषाण डायनेस्टी का। कुषाण डायनेस्टी, नहीं लिखिए, कुषाण रूलर, कुषाण डायनेस्टी। अब कुषाण डायनेस्टी में कितने शासक हुए होंगे? बहुत सारे हुए होंगे, लेकिन नाम आपको सिर्फ किसका जानना है? सिर्फ और सिर्फ कनिष्क का। यूपीएससी में क्वेश्चन कहां से आएगा? सिर्फ कनिष्क का है। अगर आ गया हुविस्क से क्वेश्चन, कनिष्क के बाद हुविस्क का, तो मत करिएगा, मत करिएगा मतलब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए नहीं आते हैं, बिकॉज दे आर नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी। मैंने कल ही बताया था कि फैक्ट उतना ही पढ़ना है जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ, उसके बाहर जाकर तैयारी नहीं करना है। सो कनिष्का इंट्रोड्यूस्ड सका संबत इन 78 एडी। तो ये ग्रेगरियन कैलेंडर से 78 ईयर्स क्या हो जाएगा? बाद में हो जाएगा, अहेड, है ना, अहेड 70, अहेड ग्रेगरियन कैलेंडर 78 ईयर अहेड। और हिजरी कैलेंडर 593 ईयर्स अहेड। 593 ईयर्स कैलकुलेशन के आधार पर 593 ईयर्स अहेड। शक संबत जो है 78 ईयर्स अहेड ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। हिजरी 593, हाँ, अहेड ऑफ ग्रेगरियन कैलेंडर। ग्रेगरियन मतलब फर्स्ट एडी से अगर लेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, वो लूनर है मून के आधार पर और ये सन के आधार पर, तो इसलिए अंतराल आएगा, गैप आएगा। आई बस समझ में? हाँ हाँ, तो ये 593 ईयर्स में डिफरेंस होता है। कभी कभी ये डिफरेंसेस चेंज हो जाएंगे, 78 ईयर्स के जगह पे 79 ईयर्स आ जाएगा यहाँ पे। ग्रेगरियन कहते हैं, अगर ग्रेगरियन के हिसाब से देखेंगे तो, लेकिन डेज में कैलकुलेशन होगा, टाइम पीरियड। लूनर और सोलर में अंतर है कैलकुलेशन में, तो इसलिए थोड़े अंतर आएंगे, एग्जैक्ट वो नहीं आएगा। तो इसलिए समटाइम्स इट इज अहेड 79। जैसे अगर हम मार्च या जनवरी जैसे मंथ देखें तो ये 79 ईयर्स का हो जाता है, 78 ईयर के जगह पे 79 ईयर्स अहेड हो जाएगा। तो आपको उतने कैलकुलेशन तो आपको करना नहीं है, उस डिटेल में नहीं जाना है, बट इतना मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ कनिष्का इंट्रोड्यूस दिस कैलेंडर, इट शुड बी नोन एज कुषाण कैलेंडर। नहीं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? So this name was given mistakenly because at that point of time all the foreigners were known as Saka Pahlwaj. Getting the point? So mistakenly this name was given and that continued till the date. तो इसलिए ध्यान रखना है, इसलिए इसको कुषाण कैलेंडर ना बोल के क्या बोलते हैं? शक कैलेंडर, सका कैलेंडर। और ये किस पीरियड के शासक हैं? कनिष्का। विच डायनेस्टी? कुषाण डायनेस्टी। विच पीरियड? पोस्ट मौर्य पीरियड। अभी आएंगे टाइमलाइन पर, नीचे लिख लीजिए, पोस्ट मौर्य पीरियड का शासक है, पोस्ट मौर्य पीरियड। दीज आर द प्रोमिनेंट कैलेंडर। समटाइम्स 319 एडी गुप्त संबत, गुप्ता डायनेस्टी, है ना, गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। सो दिस कैलेंडर स्टार्ट फ्रॉम हियर 319 एडी, गुप्त संबत, गुप्त संबत।